audible properly? So let us start with this topic, power of hydrogen or pH. pH is actually a scale on which strength of acid or basis is measured. Okay, so pH is basically a scale on which acidic or basic strength is measured in terms of some simple mathematical numbers, and this scale ranges from 0 to 14. Okay, 0 to 14 means आपको एक सपोज एक नॉर्मल स्केल जो हम यूज करते हैं रूलर पे नंबर्स लिखे होते हैं, सिमिलरली इट इज एक्चुअली नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ स्केल बट मैथमेटिकली इट्स अ नंबर 0 to 14, middle number 7 for neutral substances. If pH comes out to be 7, then that substance will be a neutral substance, and if the pH comes out to be below 7 से कम आ रही है, चाहे 6.9 तक है, then those substances will be acidic, and if the pH comes out to be greater than 7 up to 14, 7 से लेके 14 तक जो भी pH रेंज आ रही है, in that range it will be basic. अब ये देखो स्केल को आपको माइंड में रखना है, दोनों साइड्स पे एरो रखो. इसका मतलब क्या है, 7 से इस तरफ आ रही है लोअर साइड, then acidic strength increase होगी. This side, left side पे acidic strength increase for substance 0 pH will be strongest acid. 1, 2, 3, 4 या डेसिमल्स में भी हो सकती है. तो एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज टुवर्ड्स लोअर साइड. ठीक है, 0 हैज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक बिहेवियर एंड बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस टुवर्ड्स राइट साइड. 7 से दोनों साइड्स पे इंक्रीज होगी टुवर्ड्स 0, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस टुवर्ड्स 14, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. Clear? And if a solution, actually हम aqueous medium में ही किसी solution की pH को check कर सकते हैं, because we have already discussed that acids and bases show their characteristics nature in the presence of water. Water की presence में ही hydrogen या OH ion release होते हैं, and this pH is actually the measure of hydrogen ion concentration. उसका इनवर्स हम यहाँ पे pH वैल्यू ले रहे हैं. तो हायर दी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, लोअर विल बी द pH एंड स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड. आई एम गोइंग टू शो द कलर्स. एक्चुअली pH हम फाइंड कर सकते हैं ईदर बाय यूजिंग pH मीटर व्हिच इज अ डिजिटल, जस्ट लाइक थर्मामीटर होता है, आपने उसको डिप करना होता है सॉल्यूशन में, बट दैट pH मीटर इज जनरली यूज्ड फॉर लाइक जहाँ पर एक एग्जैक्ट डेसिमल में pH चाहिए. बट इन स्कूल्स और इन कॉलेजेस एक्चुअली वी हैव indicators to test whether a substance is acidic or basic or strong acid or weak base होगा. ये है universal indicator. I am taking it in a test tube. photocopy. Initially it is dark green है, but अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं water add करती हूँ, then it will be visible to you. It's greenish in color, and I will show you pH paper also. This is the strip of pH paper. As you can see, colors are visible for various pH. This is pH is written over 2, 3, 4, 5, 6, 5 तक है यहाँ पे, और बैक साइड पे आपको मिल जाएंगे 6 से लेके 10 तक pH रेंज अप टू दिस डार्क पर्पल. ये लास्ट नहीं है, ठीक है. तो दिस इज a normal pH paper which, and these numbers of related to the pH is mentioned over there. Is it visible to you all, pH paper? थोड़ा आपको numbers अगर visible नहीं हो रहे हैं तो Yes ma'am. are visible. And this is liquid universal. ये pH पेपर इसी सॉल्यूशन में पेपर को डिप करके बनाया हुआ है, ठीक है. तो अब हम डिफरेंट कलर्स चेक करते हैं एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस के.
I'll be showing you the colors in various acids. Or can you read it? Dilutes H2SO4. Dilute sulfuric acid is it? Now I'm using firstly the strip of pH paper, and then I will use that liquid indicator as well. If we put up ये method आपको activity में खुद लिखना पड़ेगा. Just take 1 or 2 drops of acid in dropper and put it over this pH paper strip. Can you see the color change of pH paper? Yes. Yes. Now what we need to do? We need to match this color with the color already shown in pH strip. अब pH strip पे जो color है ये इसके साथ match हो रहा है. कौन सा नंबर होएगा? First one is 0. 0 के साथ यही. तो because sulfuric acid is a strong acid, तो it has 0 या 1 भी कर सकते हो. Because ये dilute solution है. अगर आप exactly देखें तो pH 0 to 1 के दोनों के साथ मतलब slightly it is matching there. Just wait, Preeti ma'am has joined. Yes, beta. So this pH is, I'm writing on board what is the pH of HCl, because observation table in your file. For both of the things you need to write color, and then you need to mention. मम्मी हमने नोटबुक पे लिखना है. बेटा ये एक्टिविटी है, प्रैक्टिकल शीट्स पे करनी है जैसे पहले की है आपने. क्लियर? ओके मैम. बाद में भेज दूंगी ग्रुप में. अभी आप ऑब्जर्वेशन टेबल नोट कर लो, रफ सी बना लो नोटबुक पे, देन यू हैव टू फाइनलाइज इट इन योर प्रैक्टिकल शीट. तो फर्स्ट ओके मैम. मटेरियल यूज्ड. First one is dilute HCl. I have used. Color on pH paper is red. Now I will show you its color in universal indicator as well. This I have taken dilute sulfuric acid है या HCl कुछ भी लिख लो, एक ही ऑब्जर्वेशन आती है दोनों के साथ. थोड़ा सा ये इंडिकेटर मैंने डाइल्यूट किया था. Have a look at this. Can you see the color now? It's red in color. अब इस यूनिवर्सल इंडिकेटर की बॉटल पे भी ऐसे ही कलर्स बने हुए. तो यू नीड टू मैच इट विद द कलर. ठीक है, तो यहाँ पे भी ये 0 वाले कलर से एग्जैक्टली मैच होता है. तो पीएच ऑफ डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4. सिलेबस में आपके HCl मेंशन्ड है, यहाँ पे मैंने H2SO4 लिया. नो प्रॉब्लम. फॉर बोथ ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग एसिड्स कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर विल बी रेड. डार्क रेड भी लिख सकते हो या सिंपली रेड. पीएच विल बी 0. 0 और 1 दोनों रेंजेस में आ जाता है. डिपेंड करता है स्ट्रेंथ, मतलब अपने सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या लिए. बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है तो थोड़ा लाइट रेड भी होगा. नेक्स्ट आई एम टेकिंग एसिटिक एसिड, विनेगर जिसको हम घर में यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ विनेगर. एसिटिक एसिड. एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इट इन वाटर, अदरवाइज थोड़ा सा फिर आपको कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा. Can you see its color? दोनों में difference देखो. Sorry, I have used the same strip for these two acids. एक हमने dilute sulfuric acid से टेस्ट किया था. upper portion में I have put 1 drop of acetic acid. Can you see the difference? Yes. Yes. So this is color which is resembling to number 4. नंबर 4 पे जो कलर पीएच स्ट्रिप में आया है, यू कैन सी इट
इट इज रिजेंबलिंग टू दैट। अभी हम इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर से भी चेक कर लेते हैं। I am adding universal indicator in the solution of acetic acid. अब ये देखो, ये हमारा HCl के साथ कलर था and this color is with acetic acid, and if you match the color on the bottle as well, it is pH is 4. So I am writing its pH on board. It is yellow और ऑरेंज भी कर सकते हो अगर एग्जैक्टली येलो नहीं लिखना है, ऑरेंजिश येलो कर सकते हो, बट सिंपली येलो आई एम राइटिंग हियर। pH is 4. Is it clear? अब इन दोनों में से डिफरेंस आपके सामने है। कैन एनीवन टेल which acid is stronger out of these two? Sulfuric acid, hydrochloric acid or acetic acid? From sulfuric Hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Stronger and hydrochloric acetic acid or more? Hydrochloric. Stronger is HCl because it has pH 8 and weaker is acetic acid with pH 4. Clear? दोनों acidic का clear हो गया आपको? I will show all the colors after completing this activity. Now I am using water. If we add universal indicator in water, एक्चुअली डार्क ग्रीन हो जाता है ये, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे अभी आपको ये ब्लूइश ही लग रहा है स्क्रीन पे, बट अदरवाइज इट इज, आपने कलर ग्रीन ही लिखना है। आई विल शो इट ऑन द स्ट्रिप। सिंपली दिस इज वाटर, नो चेंज इन द कलर ऑफ, ये जो रेड स्पॉट आप देख रहे हो वो पहले HCl से लगा हुआ है, वाटर के साथ कोई कलर नहीं, मेरे हैंड्स पे एक्चुअली लग गए हैं एसिड्स। तो दिस इज नो चेंज इन कलर ऑफ द स्ट्रिप, रिमेन्स ग्रीन। ठीक है, तो ये अपर पोर्शन जो आपको विजिबल है दिस इज फॉर नॉर्मल वाटर। या वाटर में लिख लूं 3rd नंबर पे, वाटर कलर ऑन pH पेपर ग्रीन, color with universal indicator is green, pH will be 7. If you check the color on this pH strip, it will be 7. And then I have two bases also. One is sodium hydroxide and other one is sodium hydrogen carbonate. Firstly, I am checking sodium hydroxide with this. सोडियम हाइड्रोक्साइड की ड्रॉप मैंने वो ऑलरेडी यूज पीएच पेपर ही हम बार बार यूज कर सकते हैं बिकॉज इट विल शो द चेंज इन कलर. इट इज वॉयलेट कलर्ड एंड इफ यू मैच इट्स कलर डार्क वॉयलेट आता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. पीएच अभी बेटा पीएच पेपर पे 10 ही है मैक्सिमम, 14 तक हम इससे नहीं देख सकते, वो डिजिटल मीटर ही बताते हैं. अदरवाइज ये 10 पे आना मीन्स स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस के लिए आपको पीएच जो है वो 10 ही मिलता है. And if we check it with the help of universal indicator, it's violet in color. See the difference. This is HCl and this is NaOH. So sodium hydroxide gives dark violet color and HCl gives dark red color. Okay, now I am going to check it, writing here for sodium hydroxide or NaOH. You can say diluted form में है, dilute NaOH or sodium hydroxide you can write
and color on pH paper is purple or violet. सेवन 10 pH 10 या फिर 14 भी कर सकते हो, उसकी 14 ही होती है, बट पेपर पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है 14 तक pH देखने की, तो आई एम राइटिंग 10 हियर. नाउ आई एम प्रिपेयरिंग, एक्चुअली आई हैव दिस सॉलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं. आई एम प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन. Spatula I don't have here. एक्चुअली बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की पीएच भी 10 के अराउंड ही होती है, तो अभी इसमें और इसमें आपको थोड़ा सा अगर डिफरेंस देखोगे तो पर्पल कलर में डिफरेंस थोड़ा ये ज्यादा डार्क है एंड दिस इज लाइटर, बट बहुत वीक बेसिस अगर हम चेक करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देन वील हैव स्लाइटली लाइक ब्लूइश कलर. ओके, तो अभी आपको सिलेबस में एक्चुअली बेकिंग सोडा के साथ ही है, तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में 10 कर दो, यहाँ पर हम 9 pH कर देंगे. फिफ्थ नंबर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3. यू कैन राइट नेम एज वेल. कलर इज ब्लू कर देते हैं यहाँ पे एंड pH is 9. So out of these 5 solutions, which one is a neutral one? Which is neutral solution? Water. 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 And which one is strong base? Strongest base. HCl. Sodium hydroxide. NaOH. And weaker base is sodium hydrogen carbonate. NaOH. Strong acid is dilute HCl. Okay. Now note down the aim of this activity. What you need to do in your files. Write down aim. अदरवाइज थ्योरी में तो आपको ये कंसेप्ट है ही है बेटा पीएच का कलर्स के साथ. अब साथ में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो एक्टिविटी भी साथ ही साथ कंप्लीट कर लो. राइट डाउन टू डिटरमाइन pH of following solutions using pH paper or universal indicator. Using pH paper and universal indicator. एंड फॉलोइंग सॉल्यूशंस के बाद आपको ये नेम्स लिख देने हैं. डाइल्यूट HCl, एसिटिक एसिड, वाटर, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा. इन सबके सॉल्यूशंस की पीएच हमने फाइंड करनी है जो हमने अभी एक्टिविटी से की है. देन नेक्स्ट आप लिखोगे मटेरियल रिक्वायर्ड. Material required is pH paper, universal indicator, test tubes, dropper, एंड सॉल्यूशंस जो भी आपको यूज करने हैं उनके नेम्स लिख देना. दीज ऑल सॉल्यूशंस यू आल्सो रिक्वायर. स्पैचुला आल्सो यू कैन राइट. ठीक है. देन मैथ प्रोसीजर यू विल राइट ऑन योर ओन. Put 1 or 2 drops of solutions
on the pH paper and observe the change in color. Second top point में लिखोगे take 1 or 2 milliliter of the given solution in a test tube and add 1 or 2 drops of universal indicator. pH पेपर के ऊपर ड्रॉपर से आपने एसिड या बेस सॉल्यूशन को ऐड करना है एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर से टेस्ट करने के लिए आपको 1 और 2 मिलीलीटर सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में लेके उसके बाद मैम फिर से रिपीट कर दो मैम। प्रोसीजर बेटा आप लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो। एक्सक्यूज मी मैम। फर्स्ट पॉइंट, put 1 or 2 drops of given solution on the strip of pH paper, on a strip of pH paper and observe the change in color, and observe the change in color. Second point, take 1 or 2 milliliters, मिलीलीटर की भी जरूरत नहीं है, टेक फ्यू ड्रॉप्स भी कर सकते हो। टेक 1 milliliter of the given solution in a test tube. Take 1 milliliter of given solution in a test tube and add 1 or 2 drops of universal indicator. Add 1 or 2 drops of universal indicator in it and observe the change in color. Third step लिखो, repeat the same procedure for, third point, repeat the same procedure for each and every solution. जितने भी solutions मैं आपको बोले गए हैं सबके लिए आपने repeat करना है procedure एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट लिखना है आफ्टर प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल मैम 2 पॉइंट्स है। यस मैम 2 पॉइंट्स 3 बोला ना मैंने। थर्ड वन इज रिपीट द प्रोसीजर फॉर ऑल और ईच एंड ओके। वो थर्ड वाला नहीं भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रोसीजर इज इन 2 पॉइंट्स। आफ्टर दैट राइट ऑब्जर्वेशन टेबल। Observation table में you need to make 5 columns, serial number, then solution used, color on pH strip or pH paper, color in universal indicator, then pH. ठीक है? Hope you must have noted. भाई साहब नींद आ रही है तो बहुत ही शानदार। मैम थ्योरी भी लिखनी है। Yes. थ्योरी लिखने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट राइट रिजल्ट। थ्योरी भी लिखनी है। राइट रिजल्ट नेक्स्ट। नो थ्योरीज टू लास्ट राइट रिजल्ट। रिजल्ट पे आपने क्या करना है, इसमें लिखना है डाइल्यूट HCl इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड as its pH is lowest. तो lowest pH वाला strongest acid होगा and dilute NaOH is the strongest base. Clear? साथ में आप pH मेंशन कर सकते हो। Dilute HCl is the strongest acid having maximum pH or highest pH. Dilute NaOH being strongest base has highest has lowest pH, this has highest pH, okay, and water is neutral having pH 7. So this will be your result of this activity. And left hand side on the plain page you need to draw diagram. Diagrams में आपने क्या करना है, you need to show just pH strips. pH strips बना दो इस तरह से और इसको पहले हाफ को ग्रीन कर दो पूरा, और जो कलर ऑब्जर्व हो रहा है वो यहाँ इतने पोर्शन पे आपने कलर ऑब्जर्व करना है। सपोज फॉर डाइल्यूट एसिड यू हैव टू ड्रॉ इट रेड,
कंप्लीट नहीं, सिर्फ इतना पार्ट चेंज कर दो, बाकी की ग्रीन आएगी. फॉर एसिटिक एसिड यू नीड टू ड्रॉ इट, कलर इट येलो. फॉर NaOH यू नीड टू कलर इट डार्क वॉयलेट, और उसके लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए थोड़ा लाइट पर्पल या ब्लूइश कलर दे देना. ठीक है, तो और वाटर के लिए उसको पूरा ग्रीन ही रखोगे आप. द एंटायर स्ट्रिप विल रिमेन ग्रीन फॉर वाटर. क्लियर हो गया ये आपको? तो these diagrams only of pH strips you need to show. तो complete this activity also. एक activity हम इस chapter में से already कर चुके हैं, and second is this. And after मैम एम बता दो, क्या एम बता दो. एम बता तो दिया, to determine pH of. छोटे बच्चे हो आप लोग क्या? अभी पूरा लिखवाया था. To determine pH of given solutions using pH paper and universal indicator. और यहाँ इसी एम के साथ आपको सॉल्यूशंस के नेम भी लिखने. डाइल्यूट HCl, then dilute acetic acid, water, sodium hydrogen carbonate, and for these 5 solutions you need to find pH and compare their acidic or basic strength. comparison आप लास्ट में एक उस तरह से भी कर सकते हो कि pH के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर लिया. तो डाइल्यूट HCl will be strongest acid, के बाद बेसिक स्ट्रेंथ या strongest base is dilute NaOH. Clear? If you have any doubt in this activity you can ask. I am